जय श्री माताजी। उपस्थित सभी साधकों का हम स्वागत करते हैं। सामूहिक ध्यान की शुरुआत हम सामूहिकता में कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेकर करेंगे। सामूहिकता में 3 महामंत्र और उसके बाद श्री गणेश मंत्र का पठन करेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महामाया
परम पूज्य श्री माताजी कृपावंत होकर हमें निर्विचार अवस्था प्रदान कीजिए। इसी निर्विचार अवस्था में हम श्री माता जी की अमृतवाणी को ग्रहण करेंगे। You may not be affected by that because you are realized souls, but you will have to fight it. You will have to fight it. For example, racialism. Racialism is still very powerful there, very, very powerful. And you have to fight racialism through marrying people who belong to other races. But still I find difficult to marry a black person to a white person. It's an impossible situation. If I try that, I don't know what happens. Once we had such a marriage, I must tell you. And a white lady, French lady, was married to a black man. Instead of the French lady dominating, this black man dominated. So I was quite surprised, how could that be? So the reason was, I think he was taking the revenge, maybe the respite. So first of all, tremendous love and affection has to grow between the people. This color is so skin deep. It has nothing to do with the love inside. Nothing. It's so skin deep. Thank God in our country, you can have a wife
who will be very dark, husband will be very fair, or the vice versa. But they never look at that from that angle. I don't think that exists in this country. But we have another kind. See, just the typical human problem is that he discriminates through ego, which I must say Christ has tried to fight your ego. He was born in a very humble family. And he was not a white-skinned man, no. In your language, he was brown. But in Indian language, he was black. But when it comes to spirituality, you just see the enlightened one. You don't see what color they have the skin. It's very, very superficial. But this is one of the enemies of the Western life, I think, which must be conquered. Materialism is another one. But the worst of all, which is against Christ, is immorality. Immorality is so much accepted in the West. All kinds of immoral behavior is accepted. Like they say that all these immoral people say vote for somebody, he becomes the president of America. Then it's all right, doesn't matter. All kinds of immorality is allowed. But that is absolutely against Christ. Absolutely. People don't understand that immorality will lead them to a kingdom which I don't know what to call, because it's even worse than animal kingdom. And they are so immoral. They listen to people like Freud as if they have no brains, they have no spirit to take note of such a man. Only after Sahajayoga, model of Christ's life, you can have. Whatever is past is over and finished. Today, now, you are realized souls, and morality is your strength. Forget about the past, and I'm sure you can get many more people under the banner of Sahajayoga if you lead a very, very moral life. At the same time, another very bad enemy we have is our anger. So, they are very proud. They'll say, I'll now get angry. You know, I'm very angry. They are not ashamed about it. And they go on saying that I'm very angry, as if it's not wrong to say I'm very angry. Now they say, I hate. I mean, imagine any Indian language, if they use this word, it would be meaning I am committing sin. So all this aggressiveness comes from anger. If somebody has to be angry,
he should be angry with himself. Best is to get rid of anger. You can pull your hair, you can bite yourself, you can use your pillow to hit yourself. That may be the best way of taking out your anger. But see, for what are you angry? Sometimes it's absolutely useless. Sometimes it has no meaning. Sometimes it's absolutely maddening, stupid. But as long as you stop saying, I am very angry, that's it. That's the time you should know you are falling down completely. So, Christ didn't talk of all the subtle things I have been talking to you because that was left to me. Without realization, how can you talk about subtler things? You cannot. Last time I told you about the vibrations. What is it? What does it stand for? And how you get the subtle energy which we call as tanmatra of our light, tejas, of water, jala, and prithvi, agni. But I didn't tell you of one, very special one, which is in English language you call it ether. But ether is the energy which is managed by another tanmatra, we call it akash. It's especially today because it's Christ who has sacrificed his life to open our Agya Chakra, that we have reached that state of Akash. Without him, it would not have been possible. We can have general communication, like we can talk to people, we can say things, we can also use our fingers to express ourselves, our hands to communicate. But to communicate vibrations, you have to have vibrations. Otherwise, you cannot feel another person. But if you are at the Agya level, means you are mental, absolutely mental, then your vibrations also are dwindling in the sense you don't know what really they are saying. You can't judge your vibrations because these vibrations are mental. They'll say, Mother, we asked the vibrations. I said, really? But you don't have any vibrations, how can I ask the vibration? It's a very common thing. We asked the vibration, we found from the vibrations. It's not possible because you are just mental. Now, what Christ has done is to put you away from the mental level. That is the most difficult. While I am surprised, those who follow Christianity have the worst mental position. They are mentally absolutely there, like, I don't know what to call, like the fog of Delhi. That you can't cross. That's what was broken was Christ. How much we should be obliged to him that he removed the greatest hurdle in the human ascent. And that one was to break this agya, this mental being within us.
We read like mad. We listen to people like mad. We like those who give us feed for our mental being. They are so mental, so argumentative, think no end of their intelligence, that you have to just say, all right, namaskar. You can't fight their mental attitude. That's why Christ is to be worshipped by people who are so very mental. And this mental nonsense has given such a sense of superiority to people. Oh, whatever we do, what's wrong? What's wrong? They cannot correct themselves. Because unless and until you cross this limit of mental being, you cannot see yourself. You cannot introspect. You cannot see yourself. You will see others. The Sahajogis are like this, Sahajayoga is like that, all kinds of things. But you can't see yourself because the whole thing is mental. This mental attitude should be completely curbed through the help of our Lord Jesus Christ. But He is also mental. In your brains, Christ is also mental. Now what to do? The one who broke the mental attitude is also a mental. You have made him into mental, like a statue of stone. So firstly, we have to tell ourselves, now don't think, don't think, don't think, don't think, 4 times. And then you can rise above. And this is very important. In meditation, you have to go beyond the mind. And thanks to Christ that He is sitting at the Agya to finish off this nonsense of mental being. I think people should stop reading also, perhaps, maybe. Even my lecture becomes mental. What to do? I mean, everything goes into their head, becomes mental somehow. And then they ask me questions, Mother, did you say it this way? What is the... I said, yeah, I said it to make you thoughtless, just to stun you. I didn't say this to sit down and analyze and do, no. I said this that you become absolutely shocked and stunned. So, the best thing for all of you is to become thoughtless. That's the blessing of Christ. That's what He worked it out for. And I'm sure, if you work it out, that don't pay attention to others. Don't react. Just don't react. Everything they will see, they'll react. What is the need? What is the use? What are you going to do with that reaction? This reaction creates nothing but ripple of thoughts in your mind. I have told you hundreds of times. And now you have to become absolutely thoughtless after this puja. If that happens, I think we have achieved a lot. That's the biggest blessing that Christ has given you,
which you should really enjoy. Then only this Akash Tattva in you will work. And how it works? Through your attention. It works with me, as you know. With my attention I work out many things. How? Just my attention has become thoughtless. Just thoughtless. It goes wherever it goes, it works. But if you put your attention for thought all the time, for thinking, then it doesn't do the work that it is supposed to do. Attention works marvelously if you are thoughtless, otherwise it doesn't. So it has to rise from your own self, then from others, to the higher level of humanity, where you are in communication with the sky, which we can call it as the tanmatra, or the essential or the essence of ether. With ether, you can have television, you can have telephone. It's a miracle otherwise. But with this tanmatra, sitting down here, you can do the job. It works. Just attention works. I know that. You also know very well. But you don't have to ask me to put the attention. You just put the attention and it will work. It's a very important thing that you have got. I think that is the first thing. Once you have, no problem. But we start manifesting from the earth element, then from the Agni element, then from the Jala element, and then we come to Tejas. The face starts shining. But lastly we get this thoughtless awareness by which our attention is absolutely free to do some special work. But if you are all the time thinking, then poor this attention is so busy, so very busy. You don't have to ask me then, Mother, please pay attention. You can pay attention and you can work it out. In this attention, you don't feel what you bought, what you are standing, what you are wearing, what others are doing. No, nothing. You are one with yourself. And it's a life full of humor. So much humor. So much of joy. So much of happiness. That you don't care for anything. That normally people care for. So, as it is now, Sahajayoga has worked in so many countries. I am so very proud of you, very, very proud. And now it is also going to African countries is a very great satisfaction for me. And you all can do it. You all can work it out. Only thing, become thoughtlessly aware as the blessing of Christ. If it works, you will be absolutely enjoying yourself.
May God bless you. अब बात यह है कि अंग्रेजी भाषा हमारे ऊपर 300 वर्ष से लदती गई। मैंने कभी अंग्रेजी सीखी नहीं, कभी भी नहीं। स्कूल में भी एक छोटी सी किताब थी, और कॉलेज तो मेडिकल कॉलेज में कोई सिखाता ही नहीं अंग्रेजी। मेरे पिताजी कहते थे इतनी ये आसान भाषा है और इसमें इतने कम शब्द कि कोई ज़रूरत ही नहीं सीखने की। और उन्होंने हमको मराठी स्कूल में डाला और हमसे कहते थे कि मराठी सीखो और संस्कृत सीखो। मैं संस्कृत भी मैंने कभी नहीं सीखा, और हिंदी तो कभी भी नहीं सीखी। कोई सवाल ही नहीं उठता। स्कूल में भी नहीं सीखी, कॉलेज में भी नहीं सीखी, कहीं हिंदी भाषा मैंने सीखी ही नहीं। पर एक अच्छा ही है मेरे अंदर, वो मैं बता दूं आपसे, कि मैं हिंदी भाषा में जब बोलती हूँ तो हिंदी बोल सकती हूँ, और मराठी में बोलती हूँ तो मराठी बोल सकती हूँ, और अंग्रेज़ी में बोलती हूँ तो अंग्रेज़ी बोल सकती हूँ। उसका भाषांतर करना मेरे लिए बड़ा कठिन, इसलिए मैं मिक्सअप नहीं कर सकती। ये भाषा अलग बोल रहा है, वो भाषा अलग बोल रहा है, वो अलग भाषा। अब कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि मैंने हिंदी भाषा सीखी ही नहीं, लेकिन पढ़ने का शौक़, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का शौक़, उसी से हिंदी भाषा आ गई। पर शुरुआत में मेरी भाषा बहुत संस्कृत से क्लिष्ट थी, बहुत, क्योंकि महाराष्ट्रियन लोग वैसे ही बोलते हैं। महाराष्ट्रियंस को रोज़मर्रा की हिंदी नहीं आती। वो जो हिंदी भाषा बोलेंगे उसमें आधे से ज़्यादा तो संस्कृत शब्द और बचे खुचे मराठी शब्द। समझे ना? तो ये हालत है। अब हमने जो इसमें समझा है वो ये कि भाषा का भी एक वरदान होता है। जैसे संगीत का होता है, कला का होता है, ऐसे ही भाषा का वरदान होता है, और उसी से लोग बहुत सारी भाषा बोल सकते हैं। लेकिन हिंदी लोग कोई और भाषा सीख ही नहीं सकते। उसकी वजह ये है, जैसे अंग्रेज़ है, अंग्रेज़ कोई और भाषा नहीं सीख सकते, और सीखेंगे तो विद्रूप बिल्कुल। वजह ये, सब अंग्रेज़ी जानते हैं, इसलिए वो कोई और भाषा नहीं जानते। अब हिंदी बोलने वालों का ये हाल है कि वो कोई और भाषा बोल ही नहीं सकते। मैं तो कभी नहीं कहूँगी कि आप मराठी सीखो, क्योंकि मराठी भाषा बहुत ही जटिल है, बहुत कठिन। वो मराठी समझ सकता है, और उसमें इतना विनोद और इतना मजाक है, उसमें अश्लीलता इतनी भी नहीं, गंदगी इतनी भी नहीं, पर इतनी भाषा वो प्रगल्भ है, इतनी गहन है। और फिर सहजों के लिए मराठी भाषा जैसी और कोई भाषा नहीं, क्योंकि मराठी में ही कुंडलिनी के बारे में लिखा गया, इतने साधु संतों ने सब लिखा, सो मराठी भाषा। और अगर एक बार आपको मराठी आ गई तो कोई सी भी भाषा आ सकती, इसमें कोई शक। पर मराठी लोग और कोई भाषा नहीं सीखे, बड़े कट्टर होते हैं। किसी को मैंने कहा कि एक हिंदी किताब पढ़ो, तो थोड़ी पढ़कर छोड़ दी। मैंने कहा क्यों? कि सगळी घाण आहे,
सब गंदगी लिखी हुई है इसमें, मेरे को नहीं सुना, क्योंकि इतनी शुद्ध भाषा और इतने शुद्ध विचार मराठी में। पढ़ने के बाद, आप गीता पढ़ने के बाद कोई रास्ते पर की चीज़ पढ़ो, सड़क छाप, वो समझ में नहीं आ रहा। सो आप लोगों में से कुछ लोग सीखे मराठी तो अच्छा है लेकिन बड़ी कठिन भाषा है और इसमें पर्याय बहुत भाषा का। आज इसलिए मैं बता रही हूँ कि महाराष्ट्र में आके भी मुझे हिंदी में ही बोलना पड़ता है, क्योंकि आप तो मराठी भाषा जानते नहीं, पर पूना में मैं मराठी में ही बोलती और मुंबई में भी हिंदी में बोलना पड़ता। अगर कोई सीखना चाहे तो मराठी भाषा सीखे, ये सीखने वाली भाषा, और इतनी कमाल की है कि हमारे नामदेव जो बड़े भारी यहाँ के बहुत बड़े संत हो गए, उनको गुरु नानक साहब ने बुलाया और उनसे कहा कि तुम पंजाबी सीखो और पंजाबी में तुम लिखो। इतनी बड़ी किताब लिखी है उन्होंने पंजाबी में। अब मुझे पंजाब भाषा में, जब पंजाब में रही, अगर आपको मराठी भाषा आ गई तो सिवाय तमिल के आप सब भाषाएं सीख सकते, और तमिल के भी कुछ शब्द सीख सकते हैं, ऐसा नहीं। इस प्रकार इस देश में जबकि 14 भाषाएं सरकारी भाषाएं, we have, you will be surprised, 14 official languages in this country. So मैं ये कहूँ कि अगर मराठी आप लोग सीख लें तो आपको 14 में से 8-9 भाषा तो आ ही जाएंगी। अब एक और बात कमाल है कि बाइबल का ट्रांसलेशन, भाषांतर, डायरेक्टली जिसको कहना चाहिए इब्रू भाषा से प्रत्यक्ष में वो मराठी भाषा में हुआ है। यहाँ एक रमा देवी करके बड़ी अच्छी विद्वान स्त्री थी, उसने बाइबल का भाषण जो भी था, बाइबल का जो भी भाषांतर था, वो मराठी भाषा में, और उसमें जो शब्द, जैसे जॉन को योहान, मैथ्यूस का मत्तई, तो मैंने बाइबल जो है वो मराठी में पढ़ा, इसलिए बहुत बार गड़बड़ हो जाती है मेरी, और स्पष्ट रूप से लिखा, उसकी इतनी शुद्धता उन्होंने रखी हुई है। और उसी में उन्होंने लिखा कि जब वो शादी में गए थे तो उन्होंने वहाँ पर पानी से द्राक्षा सब बनाया। बड़ी तत्व की बात है, मराठी में लिखी। दूसरी विशेषता मैंने देखी कि ईसा मसीह के बचपन के बारे में, उसकी बाल्यावस्था के लिए कोई अंग्रेजी में मैंने कविता नहीं पढ़ी। आई डोंट नो, हैव यू एवर हर्ड ए पोएट्री पीस अबाउट द डिस्क्रिप्शन of Christ's childhood? I've never heard one. But in Marathi we have many. अभी कल ही इन्होंने गाया बढ़िया, बाल वदन तव बघुनी ख्रिस्ता, छोटे बच्चे का मुंह देखकर, आफ्टर सीइंग योर फेस, योर चाइल्ड फेस, बाल वदन, all my fears run away.
So this part is missing in the Western languages. I think that the childhood themes are not there. We have about Krishna, about Rama, when they were children, how they used to walk, how they used to talk, how they used to put their finger in the mouth. Every little thing is described so beautifully about you. And that is how I think Indians cannot think of killing their children at all. I mean, it's an impossible situation. Even in Hindi language, in Marathi language, we have such beautiful descriptions of this incarnation as children. Then third thing, तीसरी बात जो सरप्राइजिंग है कि सारा रोमांस इनका शादी से पहले ही है, शादी के बाद कोई रोमांस ही नहीं. Third thing is that there is no romance described after marriage, all before marriage. It's the other way around in Indian languages. All the romance comes when you are married. Very sweet things. I was surprised. I asked somebody to find out one English book where they have described the romance of the married couple. None. Finished. All the romance is over. Once you are married, it's finished. Then what do? You quarrel, you fight, you go to courts, take a divorce. That description is not there. और यही बात है कि हमारे ऊपर बड़ा भारी एहसान हमारे संस्कृति का है, बहुत बड़ा. काढा बरं हे फुलांसाठी येते इकडे, कोणतरी येऊन काढून घे. तो हमने मराठी में बाइबल का ट्रांसलेशन पढ़ा और उसमें जो बातें लिखी हैं वो बड़ी गहन. अंग्रेजी भाषा ने तो बदल ही दिया उसका स्वरूप, मैं सोचती हूँ. और ईसा मसीह के बारे में भी जो पवित्र, अत्यंत आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन मराठी बाइबल में, वो ना तो हिंदी में है और ना ही वो इंग्लिश में. तीसरी बात कि मराठी आदमी जो है बड़ा हुद्दार है. राजस्थान में भी जैसे मेवाड़ के लोग तो बड़ा हुद्दार है. वो अंग्रेज से कुछ सीख लेने वाला. अंग्रेज अगर सिखाए तो कहेगा राव दे रहने दो, आपके जैसे बहुत देख लिए. पर नॉर्थ में मैंने देखा कि बड़े अंग्रेजों का जोर, सूट बूट पहनना, टाई लगाना, जूते पहनना और सब पे रोब झाड़ना. महाराष्ट्र में मराठी आदमी को सूट पहनाना बहुत कठिन. वो तो धोती पहनते. पढ़े लिखे लोग भी धोती. अब आपने देखा है तिलक, यहाँ कितने बड़े लीडर हो गए अपने देश के. यहाँ पर रानड़े, यहाँ के रानड़े हो गए, आगरकर हो गए, सब कोई सूट वूट नहीं पहनते थे, कोई टाई वाई नहीं लगाते थे. हाँ, सरकारी नौकर हो गए तो करते हो, पर यहाँ सरकारी नौकरी करना भी बड़ी निम्न श्रेणी की बात समझते. महाराष्ट्र में आपको पता हो, बहुत बार लेख आते हैं, लिखा जाता है कि आप सरकारी नौकरी क्यों नहीं करते.
फिर 2-4 लोगों के नाम दिए जाते हैं कि देखो इन्होंने की सरकारी नौकरी तो उनका क्या खराबा। पर सरकारी नौकरों का कोई महात्म्य नहीं, कोई नहीं। और हमारे फादर तो कहते हैं कि पहले नौकरी करना अधम चीज़ है, अपना प्रोफेशन रखो, और उससे ज़्यादा सरकारी नौकरी करना तो अधमाअधम। मनुष्य का चरित्र हनन हो जाता है। तो बहुत उनकी बात मैंने देखी सही। अब कोई आईएएस में आ गया तो बस हो गया, उसका भाव चढ़ जाता है वहाँ पे 30 लाख 35 लाख। कोई आईएएस का आदमी हो गया तो नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं। यहाँ पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, तब मानते हैं। और आध्यात्मिक हो, ये बड़ा भारी डिफरेंस। और इसीलिए शुरू शुरू में दिल्ली में मैं सोचती थी कि ये क्या समझेंगे, पर बड़ी हैरानी की बात कि दिल्ली में अब सहयोग ऐसा फैला है, लखनऊ में मुझे विश्वास ही नहीं होता। किसके आशीर्वाद से हुआ? ये तो ऐसे अंग्रेजों के चापलूस नंबर 1 थे, इनको हो क्या गया हैं? ये बदल कैसे गए? मुझे लगता है कि श्री राम और श्री कृष्ण जहाँ जिस भूमि मंडल में रहे हैं, उनके आशीर्वाद, और तो मैं बता नहीं सकती। क्योंकि लखनऊ जैसी जगह तो खाओ पियो मौज करो, और सब दिल फेंक बहादुर। मैं तो हैरान होती थी, इन लोगों से बात क्या करें, सबका रिश्ता वैसा, बात वैसी, मैं समझ आता। अब मैं महाराष्ट्र से गई थी, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता था। भाभी है तो उसका मजाक ऐसा, तो नंद है तो उसका मजाक वैसा, मेरी खोपड़ी में नहीं जाता था। और अब मैं देखती हूँ कि श्री राम और श्री कृष्ण का आशीर्वाद और कबीर की वाणी, नानक साहब का आशीर्वाद। अरे ये पंजाबी लोग, मैं पंजाब में पढ़ती थी तो मैं सोचती थी ये पंजाबी, इनकी तो कभी खोपड़ी में सहयोग जाएगा ही नहीं। और मैं हैरान, मैं बड़ी हैरान, इतनी भक्ति और इतना आनंद इन्होंने कैसे प्राप्त किया। वहाँ ना कोई प्रवचन नहीं देता था, कुछ नहीं, कैसे क्या होगा। अब महाराष्ट्र में बड़ी मेहनत करी मैंने, बाप रे बाप, एक एक गांव देहात हर जगह गए, बड़ी बड़ी मेहनत करी। लेकिन महाराष्ट्र में ये बात नहीं। जो बात नॉर्थ इंडिया की वो महाराष्ट्र में नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात, मैं कहूँ कि इतनी मेहनत की सब बेकार ही जाती, उल्टे मेरे पीछे हाथ धो के लग गए। पता ये हुआ मुझे कि यहाँ गुरु घंटाल बहुत, नेक गुरु, हर एक आदमी का गुरु गुरु गुरु, घर में गुरु घुसे हुए इतने गुरु लोग हैं यहाँ, कुछ पूछे। वो पंचांग आता है ना, उसमें भी हर एक गुरु का नाम, उसका जन्मदिन, ये वो। मैंने कहा हे भगवान, और सब बिल्कुल बेकार लोग। इसमें कुछ कुछ महान भी थे, पर बहुत थोड़े, बहुत थोड़े। और ऐसे गुरु घंटाल कि जो सिवाय पैसों के और औरतों के सिवा कुछ नहीं चाहते। इतनी बड़ी ये महाराष्ट्र की भूमि, इतनी पवित्र भूमि, जहाँ पर इतने देवियों के स्थान, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली और आदिशक्ति, सबके स्थान इस महाराष्ट्र में।
और अष्टविनायक और ये महाविनायक सब यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, ये लोग अश्लील नहीं, गंदगी नहीं, लेकिन धर्म को समझने की इनमें क्षमता नहीं रही। क्षमता नहीं। वही घंटा बजाना, मंदिर में जाना और गुरुओं के पीछे भागना, बहुत ही ज़्यादा कर्मकांडी लोग हैं। पर और बातें नहीं हैं, गंदगी नहीं, पर इतने कर्मकांडी हैं कि उसमें से निकल ही नहीं पा रहे। इस तरह से मैंने आपको विश्लेषण करके बताया कि जो लोग फॉरेन के हैं, जिनसे मुझे उम्मीद ही नहीं थी, मैं सोचती थी ये क्या बेकार के लोग, इनको तो कुछ अंदाज ही नहीं किसी चीज़ का, वो वहाँ से वहाँ पहुँच गए। और नॉर्थ के लोग जिनको मैं सोचती थी कि ये क्या आएंगे सहयोग में, मैं तो दिल्ली को बिल्ली कहती थी। मेरी शादी भी दिल्ली में हुई, मेरे पिताजी भी दिल्ली में थे, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पर आश्चर्य की बात है कि आज दिल्ली में और उससे नॉर्थ में, पंजाब में, यूपी में, सब जगह, राजस्थान सहयोग फैले। ये महाराष्ट्र की दुर्दशा, और इस वजह से आप लोगों का यहाँ आना ज़रूरी है, क्योंकि आपके चैतन्य से यहाँ बहुत जागृति हो सकती और लोग महसूस कर सकते। आपके आने से आपका चित्त यहाँ आ जाता है, और उससे महाराष्ट्र के जो गुरु लोग बैठे हुए हैं, अब भी बैठे हैं बहुत सारे, मराठी में शब्द है उचल बांगड़ी करने, अब इसका मैं ट्रांसलेशन नहीं पता तो उनको उठा के फेंकने का काम आप लोगों का चैतन्य कर सकते, विशेषकर आज जबकि आप जीसस क्राइस्ट के पवित्रतम जीवन के प्रति आदर व्यक्त कर रहे हैं। उस वक्त ये मैं ज़रूर कहूँगी कि यहाँ पर जो लोग इतने सारे गुरु घंटाल बैठे हैं, जिनको ईसा मसीह आज होते तो एक हंटर से मारते फिरते, ऐसे इन गुरुओं का ही यहाँ से उछल बांगड़ी हो जाएगी और अब ये भाग के पता नहीं कहाँ जाएंगे। बहुत पैसा बना लिया सबने, काफ़ी बेवकूफ़ बना लिया, लेकिन ये एक तरह की सादगी, बेवकूफ़ी यहाँ पर है। कोई भी गुरु आए उसके चरण छू, सब चरण छू महाराज लोग यहाँ बहुत। तो ये एक बात हमारे अंदर बेवकूफ़ बनने की क्षमता पता नहीं कहाँ से आ गई है। कोई भी आए कुछ भी पढ़ाए, बस हमारी परंपरा है, गुरुदेव आ गए बस। इस परंपरा से ही ये महाराष्ट्र ग्रस्त हुआ है। और मैं तो कहूँगी कि ईसा मसीह के जीवन से उनकी सादगी, उनकी पवित्रता और उनकी अबोधिता का जो शस्त्र है, वो श्री गणेश के माध्यम से ज़रूर नष्ट करेगा इन लोगों, और महाराष्ट्र में भी जागृति हो जाए। यहाँ भी लोग प्राप्त करेंगे उस परम धन को और परम तत्व को, जो यहाँ पर न जाने कितने संतों ने कहा। कुंडलिनी के बारे में ऐसा कोई संत ही नहीं जिसने नहीं कहा। सारे ही संतों ने यहाँ कुंडलिनी की बात करी, और एक से एक महासंत इस देश में होगा।
इस देश के उन संतों को मैं सोचती हूँ, इन्होंने इतनी मेहनत करके यहाँ पर जागृति करने की कोशिश की। वहाँ मैं भी हार गई, लेकिन आप लोगों का आना बहुत मुबारक। और आप लोगों के यहाँ आने से इन लोगों में अकल आएगी, ये समझेंगे कि ये किस गुरु के पीछे हम भाग रहे हैं। ये सब जो भी मैं बता रही हूँ इसलिए कि बहुतों ने मुझसे कहा कि माँ गणपतिपुले से अच्छा है आप उधर ही कुछ करिए प्रोग्राम। मैं कहा नहीं, आप आइए, क्योंकि आपका कर्तव्य है कि आप सब में जागरण ला। महाराष्ट्र में जागरण लाना है और आपको इसीलिए यहाँ आना ज़रूरी है। और वो भी यहाँ पर ईसा मसीह का ही हम लोग गौरव करते हैं, उनकी बहुत ज़रूरत है। वो तो मैं कहती हूँ ना कि हंटर लेके इन सब गुरुओं को ऐसे ठोकेंगे, पर आप लोगों का ये विचार कि हम यहाँ आज उनके पवित्रतम चरित्र को उजागर करने आए और उनके शक्ति से महाराष्ट्र की ये भूमि पवित्र हो जाए। और ये लोग गणेश की पूजा बहुत करेंगे, लेकिन वो गणेश क्या है और गणेश का मतलब क्या है, इसको मतलब कुछ समझ भी नहीं आता। ऐसे चक्कर में फंसे हुए लोग हैं, इनको उभारने के लिए आप लोगों का यहाँ आना ज़रूरी है। हर साल आप लोग आते हैं और वो भी ईसा मसीह का जन्मदिन बनाने के लिए, ये बड़ी भारी बात है। आप सबको अनंत आशीर्वाद। इसी अवस्था में हम कुछ समय निशब्द ध्यान में बैठते हैं। परम पूज्य श्री माताजी, आपकी परम कृपा में हम सदैव सामूहिकता से जुड़े रहकर आपके श्री विराट और श्री विराटांगना स्वरूप के आशीर्वाद को प्राप्त करें। हम सदैव निरानंद अवस्था को प्राप्त करें। श्री माताजी, आपकी परम कृपा में अपने प्रकाशित ज्ञान से अनन्य भक्ति में उतरकर हम सहयोग का प्रत्येक कार्य करें
और उस कार्य को करते समय हम अकर्म अवस्था को प्राप्त करें। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम सब प्रकाश बनकर इस विश्व का आध्यात्मिक उत्थान के मार्ग में मार्गदर्शन करें। कृपावंत होकर हम सबको कुशल संभाषण, दैवी कूटनीति, प्रभावी व्यक्तिमत्व और विवेक प्रदान कीजिए। श्री माता जी, आज का यह सामूहिक ध्यान हम आपके श्री चरणों पर समर्पित करते हैं। कृपावंत होकर हम सबको और इस विश्व को आशीर्वादित कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी को प्रणाम करेंगे और सामूहिकता में कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेंगे। आज का यह ध्यान सत्र यहीं पर संपन्न होता है। जय श्री माता जी।